यार मेरे को काम है नहीं याद करने का पड़ेगा तो ये बुक पढ़ो ना, बुक पढ़ो जो बुक थी, कौन सी बुक? जो तुमको अभी है उसने दी, तुमने मुझे सेंड नहीं की थी, माइक्रोवेव की। ब्रदर मुझे आपने सेंड नहीं की थी, वही बुक है, बुक पढ़ो। दे दूंगा। तीन 15 तो हो गया ना, 3:10 चला। बस यार मेरा ये खत्म होगा ना इंजीनियरिंग, तो मैं इंशाल्लाह कोई ना कोई जॉब कर लूँगा यार। अब जो हाथ लगेगी जॉब कर लेंगे यार, और नहीं तो क्या। इस दुनिया में आ गए तो मुंह तो देना है ना, इस दुनिया में आ गए तो फेस तो करना है ना मसले यार। अच्छा आपकी सप्लियाँ क्लियर हुई? हाँ यार मैंने दिया, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। उसको पेपर के पीछे लिख जाएगा साईं माजरत करके पास कर दो, हम आप पढ़े हम छोटे। मैं पूछ के आ जाऊँ कि ये सबके को क्या हाँ करना है। कुछ आ जाए जल्दी कर। मगर वो बोलेंगे रिजल्ट आएगा तो चलो अगले हफ्ते पूछेंगे। थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया? फर्स्ट और सेकंड का है, थर्ड का नहीं है। नहीं है ना? हाँ फर्स्ट और तो वो सेकंड यही बोलेंगे रिजल्ट नहीं, आएगा। सेमेस्टर नहीं, फर्स्ट और सेकंड ईयर से में ईयर का आ गया है, थर्ड और फोर्थ का आ गया है रिजल्ट। तुमने मार्कशीट नहीं की अभी तक? थर्ड का रिजल्ट, थर्ड सेमेस्टर का आ रिजल्ट आ गया, गया? आ गया, थर्ड का भी आ गया, फोर्थ का भी आ गया। तुमने नहीं ली मार्कशीट? नहीं। जाओ उधर बस से जाओ, हाँ हाँ अंसारी थर्ड नहीं के पड़ा अभी। सेमेस्टर है, थर्ड हाँ सेमेस्टर के। उसके बाद ये मार्कशीट जाओ ले आओ, गुम ना कर दे। आपके पास है मार्कशीट? हाँ ना, मैंने कब की ले ली है यार। The field of radio frequency and microwave engineering generally covers the behavior of alternating current signal with frequencies in the range of 100 megahertz to 1 megahertz to 10 exponent 6. 10 पेजेस थे ना, 10 पेजेस थे तो 10 रुपये होंगे, 50 रुपये ऐसा होता बना आधी वजन सेट में थे, क्या डेट क्या फायर पे बता दिया प्रिंटिंग। The field of radio frequency and microwave engineering generally covers the behavior of alternating current signal with a frequency in the range of 100 megahertz to 1000 gigahertz. Radio frequency range from very high frequency 330 to 300 megahertz to ultra high frequency ultra high frequency to 300 to 300 to 3000 megahertz. 112 115 116 इन कम सॉकेट्स लगे हुए हैं। हाँ यार अभी टाइम क्या हुआ यार, 3:15 तो हुआ है। अली भाई बैठ जाओ, आप ही थोड़ा रिलैक्स करो, रिलैक्स नहीं करोगे यार, रिलैक्स करो। हाँ बंद करो, ये बैग किसका है? बंदा है आने वाला है। ये इसकी थीसिस में A4 साइज पेज है ये A4 साइज पेज है।
ये तो बात है। आपस कैसे ना बने आप जैसे पैर क्रॉप करे खत्म कर देना वेबसाइट आर्टिकल ना वो भी खत्म कर देना टेक्स्ट के खत्म कर देना टेक्स्ट जो को वेंटाड़ा है वो दूर चाहिए नहीं चार्ज के सब कट के खत्म हो गया Chart shows the location of the radio frequency and microwave frequency bands in the electromagnetic spectrum because of the high frequency and short wavelength. It shows the location of the radio frequency and microwave frequency bands also as a millimeter millimeter wave shows the location of the radio frequency and microwave frequency bands in the electromagnetic spectrum. The signals and movements on the order of millimeter are often referred to as millimeter waves. Figure number 1 shows the location of the radio frequency and microwave frequency bands in the electromagnetic spectrum because of the high frequencies and short wavelength standard circuit theory often cannot be used directly to solve microwave network problem in a sense standard यार सेट कैसे हैं ठीक है अल्लाह करम in a sense a standard circuit theory is an approximation of a special case of lumped circuit components often act as a distributed elements. Microwave often distributed
act as distributed the phases of voltage or current changes significantly over the physical extent of the device. Physical extent because the device dimensions are on the order of the electrical wavelength. Where the phase of the voltage or current changes significantly over the physical extent of the device, physical extent of the devices because the device dimensions. Real running devices because the devices dimension एक ही में कर दिया बस at much lower frequencies, the wavelengths are insignificant variations across the dimensions of a the other extreme of frequency identified as optical engineering, in which the wavelength is much shorter than the dimensions of the components. In this case, Maxwell equations can be simplified to the geometrical optics and optical systems can be designed by the theory of geometrical optics such. हाँ यार क्या पढ़ रहे हो? यही माइक्रोवेव यार हाँ यही माइक्रोवेव का चैप्टर हाँ यार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपना ये माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में सर ने क्या टेस्ट बताया मतलब अगले वीक बोला है ना टेस्ट होगा टेस्ट होगा हाँ किस चीज़ का टेस्ट होगा माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का बोला है शुरू के 15 मिनट में टेस्ट होगा और उसके मार्क्स इंक्लूड होंगे फाइनल इसमें पेपर में वो शुरू के जो नहीं है 1 पॉइंट माइक्रोवेव चैप्टर का 1.1 1.2 1.3 1.4 ये चार मिलाकर इसके मैं पूछ लूँगा वाइवा वही तो तैयारी कर रहा हूँ तुम्हारे पास जो चैप्टर था ना वही माइक्रोवेव इंजीनियरिंग and one equations and other solutions यार ये मुझे भी समझा दो अपन को मिल के पढ़ना ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मुझे नई बातें पता चल जाएगी मेन more like in radio frequency and microwave engineering, then one must often work with Maxwell equation and their solutions. क्या बोला मुझे भी कुछ सब्जेक्ट है in radio frequency and microwave engineering, then one must often work with Maxwell equation and their solution. मतलब कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग या तो रेडियो फ्रीक्वेंसी या तो माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में से कोई एक हम ज़रूर काम करेगा किसके साथ मैक्सवेल इक्वेशन के साथ एंड देयर सॉल्यूशन उसके सॉल्यूशंस के साथ भी. It is in the nature of these equations that mathematical complexity arises since Maxwell equations involve vector differential or integral operations on vector field quantities and these मतलब के Maxwell equation. अब पॉइंट आ गया यहाँ पर कि भाई Maxwell equation must work on the radio frequency or microwave engineering. Okay? Maxwell equation must work on the radio frequency or microwave engineering. सही है एक पॉइंट आ गया. Maxwell equation must work on the radio frequency microwave equations
equation and their solutions ये पॉइंट आ गया भाई and it is the nature of these equations that mathematical complexity arises since Maxwell equations involves vector differential integral operations and vector field quantities and these fields are functions of the spatial coordinates. Maxwell equation is a vector quantity. अब क्या दूसरा पहला पॉइंट क्या है? मैक्सवेल मस्ट यार आप तो एक वर्क ऑन दूर द मुझसे इतना जाते हो, हाँ आप दूर मुझसे करोना की वजह से नहीं जाते नहीं यार कोई मसला नहीं, तुम लिखो ना, लिखो मैक्सवेल इक्वेशन मस्ट वर्क ऑन द रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग एंड देयर सॉल्यूशंस, लिखो ना। अच्छा, एंड या और है और या तो इसमें से या तो इसमें से करेगा काम। मैक्सवेल इक्वेशन इन्वॉल्व्स वर्क वेक्टर मैक्सवेल इक्वेशन इन्वॉल्व वेक्टर डिफरेंशियल और इंटीग्रल ऑपरेशन ऑन वेक्टर फील्ड क्वांटिटीज। Maxwell equations involve vector differential or integral equations on vector field quantities. दूसरा क्या है? Maxwell equation involve involve in vector आप 1 पॉइंट बंद कर रहे हो? हाँ यार 1 पॉइंट लिख लो ऊपर से 1 पॉइंट कहाँ गया यार ये? वेक्टर डिफरेंशियल आ गया है, वेक्टर डिफरेंशियल और इंटीग्रल ऑपरेशन इंटीग्रल ऑपरेशंस on vector field quantities on vector field quantities सही। vector field and these fields are functions of spatial coordinates। अब spatial पता नहीं क्या चीज़ है, लिख लेते हैं यहाँ पे spatial means find करना। सही। इनमें दोनों इक्वेशन गूगल से देख लेना, मैंने भी नहीं देखा अभी तक। स्पेटल को या स्पेटल की मीनिंग देख रहे हो क्या? नहीं है ना, नेट नहीं है। नहीं, वो डिक्शनरी डाउनलोड नहीं है। अभी आगे पढ़ लेते हैं ना, अभी ऐसे करते हैं, फिर एंड में डिक्शनरी भी खोलूँगा इसकी। डाउनलोड है मगर बाद में देखूंगा। One of the goals of this book is to try to reduce the complexities of the field theory solution to a result that can expressed in terms of simpler circuits, can be expressed in terms of आज से समझ में नहीं है समझता नहीं है। अच्छा, जोर से can be expressed in terms of simpler circuits theory, पता नहीं क्या था, दोबारा पढ़ते हैं यार, क्या कहें, अंग्रेज के बच्चे हैं, इन्होंने उर्दू लिखी हुई थी, समझ जाते हैं। One of the goals of this book is to try to reduce the complexities of field theory solution। अच्छा, अब field theory solution सही है। अब तीसरा पॉइंट, मैक्सवेल helps to reduce देखो भाई, यहाँ पे हमने ये निकल जाएगा दिमाग नहीं से। नहीं, हाँ reduce the complexity of field theory solution। field theory, हाँ अब बताओ यार क्या हाँ, बोल मैं बोल रहा हूँ कि अपन ने जैसे पढ़ा ना, मैक्सवेल इक्वेशन इन्वॉल्व इन वेक्टर डिफरेंशियल और इंटीग्रल ऑपरेशन, सही है, ऑन वेक्टर फील्ड क्वांटिटीज। वेक्टर फील्ड ऑन वेक्टर फील्ड क्वांटिटीज, एक वेक्टर किस्म की फील्ड क्वांटिटीज होती हैं जिसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा, फिर अगला जुमला हमने छोड़ दिया, यानी यहाँ तक हमने अधूरी बात करी। वो नहीं, काम की पॉइंट ही इतनी है नहीं, ये है ना, एंड दिस फील्ड आर अ फंक्शन ऑफ, काम की ना काम का यही इक्वेशन है बस। ये जो बीच का मटेरियल था ना, वो ज़्यादा लिखा हुआ है इसमें मैंने इसे रिड्यूस कर दिया। अच्छा, Maxwell helps to reduce the complexities of field theory solution। पॉइंट्स निकाल रहा हूँ बस।
Complexities can't be reduced to a result that can be expressed in terms of simpler circuits theories, so perhaps extended to include the distributed elements such as transmission lines and connect concepts such as the reflection coefficients and scattering parameters. A field theory solution generally provides a complete field theory solution generally provides a complete descriptions of the electromagnetic field at every point in space, which is usually much more information than we need for most practical purposes. We are typically more interested in internal quantities such as power, impedance, voltage, and current, which can often be expressed in terms of these extended circuit. Extended of these and often expressed in terms of their of these extended circuits theory concepts. ये इधर उधर नहीं देखो, इधर It is this complexity that adds to the challenge as well as the rewards of microwave engineering. Applications of microwave engineering. Just as the high frequencies and short wavelength of microwave energy make for difficulties in the analysis and design of microwave devices and systems, these are the aspects. अच्छा क्या बोला ये? Just as the यहाँ high तक एक पॉइंट हो frequency, गया हाँ, सिस्टम तक. just as the high frequencies and short wavelength of microwave energy make for difficulties in the analysis and design of microwave. वैसा ही है. ये पॉइंट लिख लो सारी लाइन लिख लो. हम्म. Just as the just as the just as of microwave energy make for difficulties. Make for difficulties. Microwave devices. यार ये आसान लैंग्वेज लिखी हुई है, हार्ड नहीं है कोई. Will provide unique opportunities for the application of microwave systems. The following consideration can be useful in practice. Antenna gain is proportional to the electrical size of the antenna. Antenna gain is proportional to the antenna gain is proportional to the electrical size of the antenna. मतलब पेज बदल देती है. लिखने का पॉइंट है. बोला कि एंटीना गेन इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिकल साइज ऑफ द एंटीना. इलेक्ट्रिकल साइज ऑफ द एंटीना. इलेक्ट्रिकल साइज ऑफ द एंटीना. इलेक्ट्रिकल साइज ऑफ द एंटीना गेन इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिकल साइज ऑफ द एंटीना. चलो ये लिख लेते हैं. क्या है? ये पहली लाइन, एंटीना गेन इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिकल साइज ऑफ द एंटीना. मगर यार ये समझ से बाहर है. हाँ यार, एंटीना जो गेन होगा ना, एंटीना जितने मतलब के सिग्नल्स अचीव करेगा, जितने वेव फ्रीक्वेंसीज अचीव करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिकल साइज ऑफ द एंटीना. जो इलेक्ट्रिकल साइज में कितनी मतलब वोल्ट वेव एंटीना ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना वोल्ट मतलब कि पकड़ रहा है. सही. 40 वोल्ट पे ऑपरेट होगा, 30 वोल्ट पे ऑपरेट होगा. अगर 30 वोल्ट पे ऑपरेट करेगा तो एंटीना गेन और ज़्यादा होगा. अगर 60 वोल्ट पे ऑपरेट करेगा उससे और ज़्यादा होगा.
70 वोल्ट पे एंटीना ऑपरेट करेगा और ज़्यादा होगा एंटीना गेन। जितने ज़्यादा बढ़ते रहेंगे उतनी ज़्यादा जितनी जितनी सही ज़्यादा बिजली बढ़ती जाएगी एंटीना के अंदर उतनी ज़्यादा एंटीना गेन ताकत भी आती होगा। रहेगी। एंटीना गेन ज़्यादा बढ़ता रहेगा और एंटीना गेन वो चीज़ है जिससे कि सिग्नल को छपड़ेगा, मैं ठीक है सिग्नल को पकड़ेगा। बस आपने थोड़ा सा नेट से देख लेना। ये नहीं लिख रहा अपन प्रोवाइड यूनिक अपॉर्चुनिटी, इट प्रोवाइड, ये प्रोवाइड ही क्या करता है? ये नहीं पढ़ना ना, ये नहीं पढ़ना, ऊपर वाला अपना है, नीचे वाला पढ़ना। नहीं वो तो सही है। ऐसे ही तो पास हुआ हूँ और लाइन ही छोड़ देता है। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि प्रोवाइड यूनिक माइक्रो अपॉर्चुनिटी, ये वाली भी तो ज़रूरी लग रही है। ये क्या बोलते हैं, प्रोवाइड यूनिक अपॉर्चुनिटीज फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव सिस्टम्स, मतलब कि द फॉलोइंग कंसीडरेशन कैन बी रिजल्ट इन प्रैक्टिस। आप ऊपर आते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ द माइक्रोवेव सिस्टम्स इन दीज सेम एस्पेक्ट्स just as the high frequency of the wavelength of the microwave energy cause difficulties in the analysis of design and microwave devices and systems. These same aspects हैं, ऊपर वाली जो बातें की गई हैं वही बातें हैं, प्रोवाइड यूनिक अपॉर्चुनिटीज फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव सिस्टम। हाँ ऊपर वाली बातें हमें प्रोवाइड करती है हाँ, अपॉर्चुनिटी फॉर द इसे आगे एप्लीकेशन लिखो, ऑफ माइक्रो। इट आल्सो, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। तुम यार होशियार हो मगर अपने ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं है, तभी तुम दूसरों से पूछते रहते हो। इट आल्सो provides unique opportunity to provide. It also provides unique opportunity for the application of microwave system. The application of microwave or the application of microwave system. The application of microwave system. अब ये भले आगे अपन न लिखें, Microwave system is above aspect is above aspect aspect माने पहलू। Antenna gain is proportional to the electrical size of the antenna. Antenna gain, ये लिख लेते हैं, antenna gain is proportional to the antenna gain is proportional to the electrical size of the antenna. To the electrical यार ये नहीं लिखना है अपन, फॉलोइंग कंसिडरेशन कैन बी यूजफुल फॉर अस। यूजफुल इन प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस नहीं द फॉलो, अच्छा प्रैक्टिस है, हाँ तो प्रैक्टिस का अपन लिख लेते हैं अस, हाँ मतलब वो हमें तो आगे काम आएगी, वो तो ये जालिमाना का सब्जेक्ट है, मगर पॉइंट ढूंढनी है ना, समझा करो ना, तो लिख लो अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें जो सही लगे लिख चलो लो। रहने दो, आगे चलो। लिखने में कैद नहीं, जितना लिखते जाओ भर दो। नहीं यार वो तो सही है, बहुत याद भी तो करना है। याद भी करना है। एंटीना गेन इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिकल साइज ऑफ द एंटीना। यार ये तो तुम बोले थे मुझे मुफ्त में मिल जाएगा बुक वगैरह, क्या ऐसा लंगर खाना है क्या जो मुफ्त में चीज़ें मिलती है? कौन सी बुक है? जो टूर में जा रहे थे तो तुमने बुक दी थी ना विजिट पर, हाँ हाँ वो ये लंगर खाना है जहाँ पर मुफ्त में मिल रही। नहीं वो लंगर खाना नहीं है, मतलब पैसे खर्च करके हाँ वो यानी वो लोग उस शागिर्दों की मदद करते हैं। हाँ शागिर्दों के नहीं, मतलब उनका बस उनको चस्का लगा हुआ है कि दीन की चीज़ें आगे पहले, दीनी बातें पहले, दीनी किताबें बाहर से पहले। कहीं ना कहीं से नहीं फंड नहीं आता नहीं होगा फन ना, वन नहीं, अरे कहीं से बाहर से फंड आता होगा। अबे नहीं भाई फन वन नहीं है, खुद भी कलेक्शन और कोई चंदा दे गया उस ज़कात। यही तो फंड है ना यार। नहीं बाहर ये से कौन से मदरसे में गए थे? उसके पीछे लिखा हुआ है, हाँ ये खान का लिखा हुआ है, हाँ ये गुलशन इकबाल की तरफ। गुलशन इकबाल में तो पहले थी, अब है गुलिस्तान और जवाहर में, गुलशन इकबाल में भी है
वो उनके बेटे होते हैं, मगर मैं जहाँ से लाया हूँ ना वो लाया हूँ हिंदुस्तान में जौहर से, सिंबल ऑफ सोसाइटी। अंग्रेजी तालीम में पढ़ाते हैं बच्चों को, सिंबल ऑफ सोसाइटी अंग्रेजी तालीम में। सिर्फ दीनी तालीम हाफिज तालीम करते हैं। हाँ राइट भी उधर गए हैं लड़कों के लिए, हाँ रहे राइट भी उधर। और हमारा वाला का है वो जो देवबंदी, हमारा कौन सा है भाई? बिल्कुल देवबंदी। हाँ देवबंदी है ना, हमसे देवबंदी सुनी सुनी देवबंदी एक होता है ना, एक दूसरा भी सुनी है यार। बरेली। हाँ बरेली भी सुनी होता है क्या? हाँ यही है सुन्नी में दो कैटेगरी है, सुन्नी में दो ब्रांचेज है, एक है बरेली और एक है यार। एक बे। लोग यार ऐसे चूमते हैं, ऐसे करके आँखों में रखते हैं। क्या सीन है? चलो चलो अब पढ़ाई करो, टाइम लोग जा। बोलते हैं अंगूठे में से देखा आदमी ने बना में जब वो पर आसाम से चलो ये तो अजीब अनोखा होटल आ गया यहाँ पर। चलो एंटीना गेन इज प्रोपोर्शनल टू दी। जो जो अपन ने कर लिया ना, चलो अब सही है। अब कहाँ जा रहे हो?